علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ میں ہوں سید رضی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کو 76 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا میں کشمیری بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اور یہ دن کیوں منایا جاتا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کشمیر پر غاصبانہ قبضے کو 76 سال مکمل۔ بھارتی قبضے کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج۔ 27 اکتوبر 1947 تاریخ کا وہ سیاہ دن جب ہندوستانی فوج نے بغیر کسی آئینی اخلاقی جواز کے جموں و کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ تقسیم ہند کے وقت کشمیر کی مقامی قیادت نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، لیکن ہندو حکمران مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان سے الحاق کے لیے فوج کی مدد مانگ لی۔ الحاق کی آڑ میں بھارت کو جموں و کشمیر پر قبضے کے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کا موقع مل گیا۔ اس نے جنگی طیاروں کے ذریعے اپنی فوج سری نگر میں اتار دی۔ کشمیری عوام نے بھارتی قبضے کو کبھی قبول نہیں کیا اور عوامی بغاوت کے ذریعے آزادی کی جدوجہد شروع کی، جو آج تک جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر میں اب تک 5 قراردادیں منظور کی جا چکی ہیں، مگر ایک پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ہندوستان نے غیر قانونی طور پر مسلم اکثریتی کشمیر میں تقریباً 10 لاکھ فوج تعینات کر رکھی ہے اور 76 سال سے کشمیریوں پر ظلم اٹھا رہا ہے۔ ہندوستانی فوج اب تک 2.5 لاکھ کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے۔ 16 لاکھ کشمیری گرفتار جبکہ 1100 سے زائد املاک نظر آتش کی جا چکی ہیں۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد دنیا کو ہندوستان کے ظالمانہ فعل سے آگاہ کرنا ہے۔ یوم سیاہ کے موقع پر مختلف شہروں میں ریلیوں اور تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ شرکا نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا، بھارتی تسلط کے 76 برس مکمل۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب مقیم کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ پاکستانیوں کا مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ اسلام آباد میں ریلی نکالی گئی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے خطاب میں کہا، جبر بڑھنے کے باوجود کشمیریوں میں آزادی کی تڑپ بڑھی ہے۔ آزادی کے اس جذبے کو کوئی طاقت دبا نہیں سکتی۔ جو درخت نکلیں گے وہ آزادی کے اس کی جو چھاؤں ہے اس میں یہ پودے مزید فروغ پائیں گے۔ کراچی میں بھی شہریوں نے مظلوموں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ طلبہ نے بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف بینرز اور کشمیری پرچم تھام لیے۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ نے کہا، کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر۔ جو ہے یہ پاکستان کی شارک ہے۔ سیکنڈ ہی وڈ آلویز سے کہ کشمیر از مائی پاکٹ، ہی واز سو شیور اباؤٹ اٹ۔ لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان کشمیری عوام کی آواز ہے۔ ہر فورم پر، ہر جگہ پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد میں بھی عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے برہان وانی چوک پر مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے نعرے لگائے، عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھیے جی، آج سے 76 برس قبل ہندوستان نے 27 اکتوبر 1947 کو غیر قانونی طور پہ کشمیری عوام کی مرضی کے برخلاف ریاست جموں و کشمیر پہ قبضہ کر لیا تھا۔ آج ہم اس دن کو یوم سیاہ، یوم احتجاج کے طور پہ مناتے ہیں۔ پشاور میں طلبہ و طالبات سمیت دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سڑکوں پر نکل آئے، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ شرکا کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوب ایشیا میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ یوم سیاہ کشمیر پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کشمیریوں کی مثالی جرأت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے پیغام میں کہا کہ خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے حل پر منحصر ہے۔ عالمی برادری اور میڈیا کشمیریوں کی حالت زار کو اجاگر کرے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد کو دبایا نہیں جا سکتا۔ بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنا ہوگا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے واضح کیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ کشمیریوں کا حق خود ارادیت عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ کشمیری عوام آج بھی اپنی منصفانہ جدوجہد پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے یوم سیاہ کے موقع پر پیغام دیا کہ ہندوستان طاقت کے بلبوتے پر کشمیریوں کا جذبہ آزادی سرد نہیں کر سکتا۔ 27 اکتوبر ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ میں سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے، جب بھارت نے سری نگر ایئرپورٹ پر اپنی فوج اتاری اور ریاست پر جابرانہ قبضہ کر لیا۔ ہندوستان جو اپنی آزادی کے ساتھ ہی ایک توسیع پسندانہ ذہنیت کی مالک قیادت کے ہاتھوں میں تھا، نے تمام عالمی قوانین، اخلاقیات اور اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے فوجی جموں و کشمیر بھجوائے، اور یہ فوج آج تک وہاں موجود ہے، جس نے ریاست کو
عملی طور پر ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اقوام متحدہ ہو یا انسانی حقوق کی دیگر عالمی تنظیمیں، وہ ہندوستان کو کشمیریوں پر جاری اس کے مظالم سے باز نہیں رکھ پائیں۔ مقبوضہ کشمیر پر ہندوستانی فوجی قبضے کے تسلسل میں نریندر مودی کی حکومت نے اقوام متحدہ کی کشمیر کے متعلق قراردادوں کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر میں سیاسی نظام کو مکمل طور پر لپیٹ دیا۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا نوٹس سے کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے مطالبہ دہرا دیا۔ زاہد صفی، شیخ عبدالمتین، سید یوسف نصیب، عزیر احمد غزالی، سید فیض، الطاف حسین والی سمیت دیگر حریت رہنماؤں نے یوم سیاہ پر پیغامات جاری کیے۔ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اس دہشت سے، اس وحشت سے، اس بربریت سے، انسانی خون بہانے سے وہاں جذبہ حریت کو، اپنی جو کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ ہے، اس کو وہ کرش کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ 27 اکتوبر کو سیز فائر لائن کے دونوں اطراف پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں بھی کشمیری موجود ہے وہ اس کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے 5 لاکھ سے زائد جانوں کے نذرانے ابھی تک پیش کیے۔ اقوام متحدہ نے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا، لیکن بدقسمتی سے آج تک ہندوستان اپنے اس ناجائز قبضے کو دوام بخشنے کے لیے ریاست کے اندر تمام انسانی حقوق کی پامالی کر کے اس جنت بے نظیر کو جہنم میں چینج کر کے، یعنی کہ ایک دنیا کی سب سے بڑی انسانوں کی جیل، وہ جیل جس کو کبھی جنت بے نظیر کہا جاتا تھا، اس کشمیر پر آج ہندوستان کی 10 لاکھ فوج قابض ہے۔ کشمیریوں کے یوم سیاہ کے موقع پر یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر برسلز میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ شرکا نے کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ چیئرمین کشمیر کونسل علی رضا نے کہا کہ عالمی برادری جموں کشمیر پر ناجائز بھارتی قبضہ ختم کروانے میں مظلوم کشمیریوں کی مدد کرے۔ منقسم کشمیری خاندان اپنے پیاروں کی یاد میں بے چین ہے۔ 33 سال سے اپنے پیاروں سے بچھڑی شہناز بی بی کی آنکھیں اپنے پیاروں کی یاد میں نم ہیں۔ ان آنکھوں میں آج بھی اپنے پیاروں سے ملنے کی امید زندہ ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بشارت مغل سے جو اس وقت شہناز بی بی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی مغل آگاہ کیجیے گا۔ کشمیر میں بھارتی فوجی لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں جو مقیم کشمیری ہیں آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے ظلم و بربریت کا شکار فیملی جو 33 برس قبل آزاد کشمیر میں یہ آئے اور آج کل یہاں یہ مقیم ہیں۔ سب سے پہلے آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ السلام علیکم، میرا نام شہناز بلال ہے۔ میں مقبوضہ کشمیر کے علاقہ کیرن سے میرا تعلق ہے۔ اور آج سے کتنے سال قبل آپ یہاں تشریف لائے؟ آج سے تقریباً 33 سال قبل ہم کشمیر سے ہجرت کر کے مقبوضہ کشمیر سے یہاں آئے آزاد کشمیر میں۔ اقوام متحدہ جس نے قراردادیں پاس کی تھی کہ رائے شماری کے مطابق کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق ملے گا، وہ اقوام عالم جو آج خاموش ہیں ان سے کیا اپیل کریں گی؟ اقوام متحدہ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ انہوں نے تو اتنی قراردادیں منظور کی، اتنی قراردادیں پاس کی ہیں ہمارے، لیکن یقین کریں آج تک کوئی بھی ایسا فیصلہ کشمیریوں کے حق میں نہیں ہوا۔ ہر سال بلکہ ہر دن کوئی تقریباً ہزاروں کی تعداد میں نہتے کشمیری قتل ہو رہے ہیں، بربریت کا شکار ہوتے ہیں، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں ادھر۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ سے یہ لوگ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پاس قراردادوں پہ عمل درآمد کراتے ہوئے کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق آزادی دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے تاکہ کشمیر آزاد ہو اور ہم جا کے اپنے پیاروں کو مل سکیں۔ جی پشاور کی سکھ برادری بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ کو بھرپور انداز میں منا رہی ہے۔ سکھ رہنما صاحب سنگھ کہتے ہیں بھارت کشمیر میں نہ صرف مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے بلکہ سکھوں پر بھی مظالم ڈھا رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں پشاور سے بول نیوز کے نمائندے نواب شیر۔ بالکل، پشاور کی اقلیتی برادری بھی جو ہے وہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور آج کا دن جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت سکھ کمیونٹی کے رہنما صاحب سنگھ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے کشمیر پر بھارت نے۔ پورے پاکستان میں آج یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے اور کشمیروں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے۔
वहाँ पे जो कश्मीरी है उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। 1947 से लेकर अभी तक ग़ुलाम है और अभी तक उस पर इतने जुल्म हो रहे हैं और कितने मुसलमान भाइयों को शहीद किया गया, बल्कि सिखों को भी वहाँ पे चिट्टीपुरा सिंह में शहीद किया गया। तो वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है इसके हम भरपूर मजम्मत करते हैं और जितने भी कश्मीरी भाई हम पूरी सिख कम्युनिटी उसके साथ है जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पेशावर की पूरी सिख कम्युनिटी जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और भारतीय मज़ालिम की जो है वो मजम्मत कर रहे हैं और आज का दिन जो है वो यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवाब शेर आपका। मुल्क भर की तरह कराची में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार क़ायद तक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में स्कूल के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफ़ील अहमद से। कश्मीर के यौम सियाह के मौके पर एहतजाजी रैली जो है वो मज़ार क़ायद से जो है वो पीपल्स सेक्रेटेरिएट तक मुनक्किद की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर शहरी मौजूद भी हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी, आज का दिन तो जैसे कि आपको पता है कि स्याह दिन है हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे कश्मीर भाइयों के लिए, बहनों के लिए। तो हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ है और हमारी पूरी कौम, हमारे बच्चे बूढ़े सब आज के दिन जो है ये दुख का इजहार भी करते हैं और ये यकदयानी करवाते हैं कि हम उनके साथ है और इंशाल्लाह हम कश्मीर को आज़ाद करके रहेंगे। जैसे कि आज कश्मीर यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है कि कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कश्मीर एक शहर पाकिस्तान ही की है, लेकिन हमें देखने को मिला है जो भारत जो वो कश्मीर पर काबिज बना और उनको आज़ादी नहीं दे रहा। तो हमें ये समझता हूँ कि हमें आज जो है ये पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा और एक टेबल टॉक के ज़रिए कश्मीर के मसले को हल करवाए, क्योंकि कश्मीर का मसला काफ़ी सालों से चलता आ रहा और अब तक हल नहीं हुआ। ये जो है वो तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुकम्मल तौर पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करती है और यहाँ मौजूद है। जी कफील, बहुत शुक्रिया आपका। मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ तजियाकार मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकार साहब, 76 साल मुकम्मल हो गए हैं भारत के मकबूजा कश्मीर पर कब्जे को। अब तक आलमी बिरादरी इसके हल क्यों नहीं निकाल सकी, क्या समझते हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो यौम सियाह से बात करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लें कि 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो जो मकबूजा कश्मीर है, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर है, इसमें महाराजा हरी सिंह की गवर्नमेंट थी और इसके खिलाफ फिर कश्मीरी अवाम जो है उठना शुरू हुए और पूंछ से ये आज़ादी की लहर चली। सरदार इब्राहिम है, इसी तरह सरदार कयूम थे मरहूम और बाकी कश्मीरी अवाम थे। और इसमें फिर महाराजा ने काफ़ी सप्रेस करने की कोशिश में काफ़ी शहादतें हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आप कह लें आज़ादी की जंग जो है फैलती गई और जो आज आज़ाद कश्मीर है या ऊपर गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे ये मूवमेंट चल रही थी। इसको प्रेस करने के लिए फिर 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने ये अपनी फौज को उतारा था श्रीनगर एयर बेस पे और उनको खतरा था कि शायद जो है मकबूजा वादी जो है वो भी उनके हाथ से निकल जाएगी। तो ये फिर 1.5 साल लड़ाई रही और इसमें आई थिंक पाकिस्तान आर्मी, फिर इसके बाद और उस वक्त लियाकत अली खान थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया कि कश्मीरियों की आज़ादी के लिए हम इसको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो एक तवील जंग हुई और पहली कश्मीर वॉर में पाकिस्तान के अवाम, कश्मीरी अवाम, GB के अवाम और फाटा से जो हमारे आए हुए थे जो आपके मुजाहिदीन को सक्सेस हुई। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर है GBAC वॉर का नतीजा है। अभी आ जाते हैं कि जो ऑक्यूपेशन है 76 सालों से जारी है और उसकी बड़ी सिमिलैरिटी है विद व्हाट इजराइल इज डूइंग इन पैलेस्टाइन। इस वक्त जो है जिस तरीके से गाजा या वेस्ट बैंक एक ओपन एयर प्रिजन है, इसी तरीके से मकबूजा कश्मीर स्पेशली जो वादी है वो ओपन एयर प्रिजन है। हर 7 कश्मीरियों के ऊपर इस वक्त एक भारतीय फौजी डिप्लॉयड है और कश्मीर मीडिया सर्विस की आज की रिपोर्ट बता रही है कि 15 लाख फौजी या पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड है। इज हाईली मिलिटराइज्ड। उनके घरों को उसी तरीके से बुलडोज किया जाता है जिस तरह इजराइल पैलेस्टाइन में करता है। बाज़ औक़ात जो है बच्चों को शहीद किया जाता है, ख़वातीन की बेहुरमती की जाती है। 14,000 से ज़्यादा बच्चे कैद हैं इस वक्त 5 अगस्त 2019 के बाद से और विदाउट ट्रायल उन्होंने रखा हुआ। इसी तरीके से हमारी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितनी हुर्रियत लीडरशिप है सारी की सारी पाबंद सलासल है। और फिर भारत डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रहा है जिस तरीके से इजरायली सेक्टर जो हैं जो गाजा के इर्द गिर्द आपने देखा जो इन्होंने अपने सेटलर्स कॉलोनीज बनाई हुई हैं या वेस्ट बैंक में एग्जैक्टली उसी तरीके से अभी पंडितों के नाम पे या बाकी इवन रिटायर्ड मिलिट्री के जो जवान हैं भारत के उनको ला के बसाया जा रहा है।
सो आई थिंक हर लिहाज से ये एक तवील जद्दोजहद भी है, और इसमें टाइम लोग डिमोरलाइज होते हैं कि शायद जो अपना मूवमेंट है उसमें कोई डेंट आए। मूवमेंट्स ऐसे ही होती हैं, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अभी जो हमास ने या फ़लस्तीनियों ने इजराइल के साथ एक आई वुड से वॉर का आगाज़ किया, इससे बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है कश्मीरी अवाम को ऑन बोथ साइड्स ऑफ LOC। और भारत में बड़ा इज़्तिराब है कि अगर कश्मीरी इस तरीके से खड़े होना शुरू हो गए उनके अगेंस्ट, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होगा। तो आज का दिन आई थिंक एक लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो सिर्फ ये नहीं है कि ब्लैक डे ही देखा जाए, बेसिकली इट शुड बी रिमेंबर्ड एज स्ट्रगल ऑफ कश्मीरीज फॉर देयर लिबरेशन, और ये उसका एक हिस्सा जरूर है और इसमें कंडेम भी हमें करना चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं, वादी नीलम में भी यौम सियाह की मुनासबत से रैलियां निकाली जा रही हैं। मुजाहिरीन की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया जा रहा है कि मसला कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल करवाने। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नीलम मुमताज़ अहमद बट से। जी नीलम। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज के दिन को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। आज ही के दिन 76 बरस कबल मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने अपनी नाजायज़ फ़ौजें उतारी थी, जिसकी याद में आज वादी नीलम के ज़िले हेडक्वार्टर 8 मकाम में एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसके बाद आज़ादी चौक में एक पुरअमन एहतजाज किया गया। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया जा रहा था कि वो अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत दिलवाए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज से 76 बरस कबल इसी रोज़ कश्मीर के जो मुसलमान हैं उन पर इंडिया की काबज़ अफवाज ने जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, जिसकी मज़म्मत भी की गई और इस अज़म का इरादा किया गया कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता तब तक अपनी जो बहुत शुक्रिया आपका। जज्बे हैं जवां अपने, दुआओं में है तासीर, आज़ादी पे कुर्बान हर एक तिफलो जवां पीर, जन्नत कभी होती नहीं कुफ़ार की जागीर, ए खुल्द की तस्वीर मेरी वादी कश्मीर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए बोल के साथ। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड कप में बका की जंग लड़ेगी। चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में बाबर 11 का सामना टूर्नामेंट की फेवरेट जनूबी अफ्रीका से होगा। नाकामी ग्रीन शर्ट्स की फाइनल 4 तक रसाई तकरीबन नामुमकिन बना देगी। बड़े मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। बाबर 11 के सामने करो या मरो की सूरत हाल। फाइनल 4 तक रसाई के लिए गिराना होगी आज मजबूत दीवार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में बड़ा टाकरा। वर्ल्ड कप में रहना है तो हार कोई ऑप्शन नहीं। प्रोटीज काबू में ना आए तो ट्रॉफी की दौड़ में रहना नामुमकिन हो जाएगा। कौमी टीम में बड़े मैच के लिए 2 तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अनफिट हसन अली की जगह वसीम जूनियर को मौका मिलेगा। इमामुल हक को बेंच पर बिठाकर फखर जमान को मैदान में उतारा जा सकता है। वर्ल्ड कप इवेंट्स में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका 5 बार आमने सामने आ चुके हैं। 3 बार जनूबी अफ्रीका ने मैदान मारा, 2 बार शाहीन फतहयाब हुए। पाकिस्तान ने दोनों कामयाबियां 2015 और 2019 में हासिल की। मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स 5 में से सिर्फ 2 मैच ही जीत सके। जनूबी अफ्रीका टॉप 4 टीमों में से एक है। 5 में से 4 कामयाबियां उसके हिस्से में आई। नीदरलैंड से अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत में जारी वर्ल्ड कप में आसाब शिकन मुकाबले, कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी फैसला ताहाल ना हो सका। कौमी टीम को फाइनल 4 में डायरेक्ट पहुंचने के लिए अपने बकिया तमाम मैचेस जीतना होंगे। एक भी मैच हारने की सूरत में रसाई अगर मगर का शिकार हो जाएगी। वर्ल्ड कप का पहला मरहला मुकम्मल, लेकिन सेमीफाइनलिस्ट का फैसला ताहाल ना हो सका। 5 मैचेस में फतह के बाद मेजबान भारत की पोजीशन मजबूत। फाइनल 4 में जगह बनाने के लिए मजीद एक जीत दरकार। इंग्लैंड 4 मैचेस हार कर भी इवेंट में बरकरार है। इंग्लिश टीम को अब किसी मौजज़े का इंतजार है। पाकिस्तान ने 5 मैचेस में से 2 में फतह तो समेट ली, लेकिन डायरेक्ट सेमीफाइनल खेलने के लिए मजीद 4 मैचेस में जीतना लाजमी होगा। कौमी टीम अगर 3 मैचेस जीतती है तो फिर रन रेट में मजीद बेहतरी लाना होगी। ग्रीन शर्ट्स 2 मैचेस जीतकर किसी मौजज़े की सूरत में ही आगे जा सकते हैं। मेगा इवेंट में शरीक तमाम 10 टीमों ने 5-5 मैचेस खेल लिए हैं। ताहाल ना कोई टीम इवेंट से बाहर हुई है, न ही किसी ने फाइनल 4 में जगह बनाई है। श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराकर 5वीं पोजीशन ले ली।
इंग्लिश टीम 9वें नंबर पर चली गई। भारत, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो चौथी टीम के लिए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान रस्सा कशी होगी। तो साथ ही साथ आपको बताएं, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना और तीनों मैचेस की हार भूलकर मैदान में उतरना चाहिए। शायकीन क्रिकेट ने मशवरा दे दिया। मशवरा तो यही है कि पहले बैटिंग करनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि चेज जो है मुश्किल होता है, तो पाकिस्तान चेजिंग में वैसे भी बेस्ट नहीं है। करना तो चाहिए क्योंकि काफ़ी मैच जो पिछले वाले वो हार गए हैं, इस बार तो इन्हें अच्छा खेलना चाहिए। मैं देखें, हमारी जो कौमी टीम है ना, इसके अंदर समझ ही नहीं आ रही कौन प्लेयर क्या करना चाह रहा है। मैंने जो चीज़ें देखी हैं उसमें ऐसे लग रहा है कि हर प्लेयर जो है वो इंडिविजुअली खेलने की कोशिश करता है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जो है पूरी की पूरी अपनी कोशिश, पूरी जान लगा करके आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो है वो इंशाल्लाह मैच ज़रूर जीतेगा। पाकिस्तान को ये हर आलम में मैच जीतना चाहिए। अगर प्लानिंग के साथ पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलेंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे। हमारी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। आज बाबर आजम 100% परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि जो 3 मैच पीछे हारे हैं उनकी वजह से कि बाबर के ऊपर बहुत से सवालात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रही हैं कि उसमें खाली बाबर की गलती नहीं है। आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मैच है, पाकिस्तान को आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, जैसे सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। चेन्नई में मौसम की सूरत हाल बेहतर हो गई है। फैंस ने भी एक बार फिर टीम से उम्मीदें बांध ली हैं। मजीद जान लेते हैं, चेन्नई में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज वसीम से। एजाज बताइए। चेन्नई में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड कप का अहम मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहाँ पे खेलने जा रही है। सुबह यहाँ पर हल्की बारिश हुई थी, लेकिन अब तेज़ धूप निकली हुई है और जो इस वक्त दर्जा हरारत है चेन्नई का वो 31 के करीब है और गर्मी फिर से बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि साहिल समंदर पे ये स्टेडियम है। तो वो जो साहिल समंदर के बादल थे उन्होंने थोड़ा सा आसमान को ढका हुआ ज़रूर है, लेकिन अब वेदर क्लियर हो जाता है। मेरे साथ क्रिकेट फैन मौजूद हैं जो कि एक मरतबा फिर पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तंजील। तंजील, पाकिस्तान आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलने जा रहे हैं, क्या तवक्कुआत है पाकिस्तानी टीम से? पाकिस्तान जरूर जीतेगी ये मैच, आज का मैच। कैसे जीत सकती है? आप क्या मशवरा देंगे टीम को? पहले टॉस विन होके बॉलिंग करना, फिर चेस में जीत सकते पाकिस्तान। लेकिन साउथ अफ्रीका तो 400 के करीब पहले खेलते हुए बना रहा है। रिस्ट्रिक्ट कर देगा पाकिस्तान 250 260 के अंदर। आपको ये उम्मीद है? उम्मीद है। आप आइए सर आगे। सर आप मुझे बताएं पाकिस्तान कैसे मैच जीत सकता है? क्या आप मशवरा देंगे बाबर को? नहीं, बाबर को यही मशवरा है कि जैसे क्रिकेट खेली है पाकिस्तान हमेशा से कि वो कम बैक करने के लिए जानी जाती है पूरी दुनिया में। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक कैप्टन के पीछे पड़ेंगे, बाकी की परफॉर्मेंसेस बॉलिंग में परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। शादाब को जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसको बॉल डालना पड़ेगा टप्पे पे। दुआ जो है वो पाकिस्तानी टीम को कामयाब कर सकती है और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है। जहाँ तक वेदर की सूरत हाल है, वेदर बिल्कुल यहाँ पे दुरुस्त है, क्लियर है। टॉस भी अपने वक्त पे होगा और मैच भी वक्त पे शुरू होगा। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताते चलें कि इजरायली तैयारों ने एक बार फिर फलस्तीन में शहरी आबादी को वहशियाना बमबारी का निशाना बना डाला। ताज़ा हमलों में मजीद 21 अफराद शहीद हो गए। शोहदा में मुकामी सहाफ़ी और उसकी वालदा भी शामिल हैं। शहादतों की तादाद 7028 तक जा पहुंची। 19,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। एक और खून आशाम दिन, एक और दर्द में डूबी रात। इसराइली जंगी तैयारों की फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात। गज़ा पर ताज़ा हमलों में मज़ीद 21 अफराद शहीद हो गए। 21 रोज़ से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 7028 हो गई। शोहदा में 3000 बच्चे और 1700 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं। बमबारी से 19,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 2000 लापता अफराद के इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक अल जैतून मोहल्ले में मकान पर बमबारी से 10 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में मकामी सहाफ़ी यासिर अबू नामूस और इसकी वालदा भी शामिल हैं। खान यूनस महाजर कैंप पर हमले में 5, नौसिरात में 8 अफराद शहीद हुए। मगरबी किनारे में कार्रवाई में 4 अफराद शहीद कर दिए गए। 46 अफराद को हमास से ताल्लुक़ के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली फौज ने 250 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा कर दिया। सहूनी हुक्काम के मुताबिक 224 अफराद अब भी हमास की कैद में हैं। हमास का कहना है इसराइली बमबारी में इसके 50 यरगमाली बाशिंदे मारे गए। हमास ने तल अबीब समेत कई शहरों को रॉकेटों से निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक जल्द 3 दिन कई बार निशाना बनाया गया। रहूफोत में हाई ट्रांसमिशन लाइन पर रॉकेट लगने से बिजली मुअत्तल हो गई। गजा में कशीदगी खित्ते की सूरत हाल को काबू से बाहर कर देगी, हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ ये जंग तारीख का धारा मोड़ देगी।
हमास के सरबराह का इसराइल को सख्त इंतबा। तूफान अल अक्सा ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। हमास के सरबराह ने खबरदार किया है कि मौजूदा कशीदगी की वजह से खित्ता एक गर्मा गर्म मौजू बन गया है। कोई भी इसकी सिमत या नताइज का अंदाजा नहीं कर सकता। इसराइल 7 अक्टूबर के वाकयात के बाद संभल नहीं पाएगा। फलस्तीनियों पर इसराइल के तसल्लुत का वक्त गुजर चुका है। इस्माइल हानिया ने कहा कि गजा में 20 दिन की लड़ाई के बाद मज़ाहमत बहुत बेहतर है। इसराइल के साथ ये जंग तारीख का धारा मोड़ देगी। हमास के सरबराह ने रफा समेत तमाम क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा किया ताकि गजा को जरूरत की हर चीज तक रसाई की इजाजत दी जाए। हानिया ने तमाम ममालिक से गजा पर हमले को रोकने के लिए तमाम जरूरी दबाव डालने का मुतालबा किया। गजा में जंग बंदी और इसराइली जारहियत की रोकथाम के लिए 2,25,000 पैगामात अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट अरकान को भेज चुके। कौंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस का कहना है कि मसले के हल के लिए अमेरिका से किरदार अदा करने की अपील की है। गजा में इसराइली जारहियत रोकने के लिए अमेरिका किरदार अदा करे। कौंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने अपील कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। जंगबंदी के लिए 2 लाख से ज्यादा ईमेल्स अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट अरकान को भेजी जा चुकी हैं। जारहियत की रोकथाम के लिए सीज फायर नाउ करारदाद भी पेश। गजा में जारी इंसानी बहरान को फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। करारदाद का मकसद कांग्रेस को एक्शन अलर्ट पैगामात भेजना है ताकि अरकान पर जोर दिया जाए कि वो गजा में जंगबंदी की हिमायत करें। की सफाकी और बेहिसी की तमाम हदें पार हो गईं। एक जानिब इसराइली फौज ने फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग कर दी, वहीं इसराइली बाशिंदे सोशल मीडिया पर अहले गजा की बेबसी का मजाक बनाने लगे। आगे बढ़ते हैं। बोल नेटवर्क अपने नाजरीन तक मयारी कंटेंट पहुंचाने के लिए हमेशा से कोशा है। बोल नेटवर्क और टेलीटॉक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे का मकसद नाजरीन तक हक़ाइक़ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाना है। चेयरमैन समीर चिश्ती ने उम्मीद जाहिर की कि इक़दाम से बोल के नाजरीन की तादाद में इजाफा होगा। बर वक्त और हकाइक पर मबनी खबरें। बोल नेटवर्क ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। बोल नेटवर्क और टेलीटॉक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे का मकसद बोल का कंटेंट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुँचाना है। MOU की दस्तखती तकरीब बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में हुई। तकरीब में चेयरमैन बोल नेटवर्क समीर चिश्ती ने खुसूसी शिरकत की। एंटरटेनमेंट हेड शाहजेब रोहेला, टेलीटॉक के CEO शहबाज जामोद और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अदनान लोटिया भी तकरीब में शरीक थे। चेयरमैन समीर चिश्ती ने मुआहदे को अहम संगे मील करार दिया। उनका कहना था कि हमारे डिजिटल टूल्स का कोई मुकाबला नहीं। आज की पार्टनरशिप जो हमने टेलीटॉक के साथ साइन की है उससे वापस नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा। हमारे जो इंशाल्लाह हमारे जो डिजिटल टूल्स हैं वो अनमैच्ड हैं, उससे बेहतर किसी के पास नहीं है। एंटरटेनमेंट हेड शाहजेब रोहेला का कहना था कि इस इश्तराक से बोल के नाजरीन की तादाद में कई गुना इजाफा होगा। आज से आप देखेंगे कि हमारा कंटेंट जो रीच है, जो पहले इस वक्त अगर हम 10 on 10 थे तो इस वक्त शायद अब 100 on 100 हो जाएंगे और आपकी जो ऑडियंस है इंशाल्लाह ट्वाइस नहीं तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। शहबाज जामोद और अदनान लोटिया ने बोल के साथ पार्टनरशिप पर इजहार मुसर्रत किया। हम चाहते हैं कि ये तमाम कंटेंट जो बोल पे क्रिएट हो रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, नई ऑडियंसेस इसको देखें। मेन पर्पस ये था कि आज बोल की तमाम टीम्स और उनकी मैनेजमेंट बैठी हुई है, जितना भी कंटेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा बोल पे इसकी रीच को बढ़ाया जा सकता है, वहाँ तक बढ़ाया जाए। अवाम को हक़ाइक़ की बर वक्त फराहमी बोल का अज़म है। बोल नेटवर्क इसी अज़म के साथ मुस्तक़बिल में भी आगे बढ़ता रहेगा। लाहौर में खतरनाक हद तक फ़िज़ाई आलूदगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 तक पहुँच गया। भारतीय शहर दिल्ली 202 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया, जबकि कराची 154 के साथ 9वीं पोजीशन पर है। जहर आलूद फिजा सांस लेना भी हुआ दुश्वार। आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त लाहौर। बागों के शहर की फिजा खतरनाक हद तक आलूदा और मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 तक पहुँच गया। आलूदा तरीन बड़े शहरों में दिल्ली का दूसरा नंबर, जहाँ एयर इंडेक्स 202 रिकॉर्ड किया गया। कराची एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ 9वें पोजीशन पर है। माहिरीन के मुताबिक अब्र करम की आमद तक इस फिजाई आलूदगी में कमी के असरात दिखाई नहीं देते। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।